यस सर, शुरू करें? यस सर। तो सर अगर आप बता दें व्हाट यू वांट मी टू कवर तो बेसिकली प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो आप एक तो पुराना प्रोडक्ट और एक जो नया प्रोडक्ट है बीच में जो इन्वेस्टर है उनको कैसे करना है क्या और एक मार्केट के बारे में आप नया कौन सा? जब लॉन्च कर रहे हैं so thank you everyone for being on the call. So let me first summarize about the long term what we have been doing. So coming straight to the point, the returns may be slightly lower than let's say what we had communicated to you initially. We initially said 7% kind of a post-fee post-tax number. The long-term average is much more than that. So historically, we have given around 14% post-fee pre-tax. So Purana investors have got 8.5% post-fee post-tax. Last So historically, we have given somewhere around 8.5% post-fee post-tax. Last 12 months, the number would be somewhere around 6%, 6% plus for post-fee post-tax, and that too because of some bump last month. So last month was good for us. Before that, we were under. Last month, correct. So, but we are competing with that segment. We are not competing with equity. We are not competing with balanced. We are saying जो भी 1 साल से 3 साल तक का पैसा है, if you are comfortable with even lower tenure, we are okay with that. But primarily, let's say 10, 12, 18, 24 months money. That is what we want. The good thing is we have not given a single negative month in the last 30 months. So if you see our return pattern, you will see some month maybe 10 bits down. So, but that is post-fee. Pre-fee on a gross basis, we haven't given negative month for the last 30 months now. So that is the reason why we are pitching that you can consider us as a debt equivalent, because typically debt will also not give you so much shocks in the portfolio. Equity arbitrage is zero risk. So that is a segment which has got huge AUM. We think come what may, we will give much superior returns to equity arbitrage. So a lot of money which is coming to us now is also from the corporate treasury part also. So they are giving us light money. They are equating us to equity arbitrage. So the thought process is equity arbitrage is zero risk. We are not zero risk, but we are very low risk. The risk is comparable. थोड़ा ज़्यादा risk में the returns are much superior. So the two segments that we are competing against with is debt, short-term debt, up to 24 or 30 months, and then equity arbitrage. Going forward also, we don't think that we will see negative months. Not having negative months is very important, because if we don't have negative months, we will keep getting that 1.5-2% month. So typically the way we anticipate returns is in a 6-month window, typically we will get a 1.5-2%. That single month alone is enough to pull returns up upwards of 6% per annum after tax. So that is what we are doing. People ask us what returns we are targeting. We work the reverse. We aim not to have negative months. If we don't have negative months, 1 month we will get one full loss in which returns will be good, which will more than compensate for, let's say, the 2 or 3 month past lag. That is how we operate. We are indeed grateful to OM for giving us initial AUM when we were young. Right now we are a 4,500 crore fund. The good thing about us is we are mainly into index level options. When we started, we were into stocks. So what Aventus does, for example, is long ITC, short HDFC Bank, long Vedanta, short Infosys. So they will have something like this in the portfolio, and that is why they are long short. मुझे personally लगता है कि the risk in that is higher than what we are doing, because you can get hit on both sides. The longs can come down and the shorts can go up. Yes. वो manage करना थोड़ा challenging है. That is point number 1. Point number 2, sir, liquidity in stocks is not that. अगर आप long short चलाओगे 2,000-4,000 crore का, you need at least 50 names. 50 छोड़ो, you need more than that, because 30 you will need on the long side, 30 you will need on the short side. आपको 200-300 crore का position बनाना होगा. 100 crore पकड़ लो in a single name. In stocks and futures, sometimes liquidity may dry up. So then you can get squeezed either on the long side or the short side. What we are doing is mainly index level stuff. So what we are doing is we do a combination of buy options and sell options.
So if Nifty is at 18,500, we will sell 18,700. As an example, we may sell 18,700, we may buy 18,900. Bank Nifty is at 43,200, we may sell it 43,004, we may buy 4200. And then we try to keep the portfolio as flat as possible. We don't keep the portfolio exactly flat. Exactly flat portfolio kar doge na. So if market is range bound, it gives us good returns. So last month, if you see the markets, Volatility. utna nahi tha volatility, but premium high tha, so you're able to pack that premium. The flip side is if market moves very wildly, then keeping the portfolio exactly market neutral can cause you some loss if let's say there's a 3%, 4% move in a week. I'm saying a week because we do weekly options. Weekly options में सबसे ज़्यादा liquidity है. आप options का volume देखोगे, so you will be stunned. Daily volume is around 1 crore notional, उससे भी ज़्यादा. So scalability is not a problem. So at 4,500 crores, if the fund becomes 10,000 crores, you will just have to double the positions. That's it. Yes. That liquidity also available. हाँ, liquidity available है, तो कोई problem है ही नहीं. हम लोग 4,500 crores में portfolio वैसा चला रहे हैं जैसा हम लोग 450 crores में चला रहे थे. All we have done is added one more zero to the positions. That is the liquidity which exists in this segment. Because of it, position building, risk cutting, sometimes loss booking also is not a problem. So liquidity wise, we think we are better off compared to let's say what an Aventus does. क्योंकि हम लोग दोनों गाल पे थप्पड़ नहीं खाएंगे. So एक तरफ खाएंगे. एक तरफ खा सकते हैं अगर खाएंगे तो. For example, if you have sold calls and puts both, one of them will give me money. Both can't cause me loss because the underlying is kind of same, and the underlying will have good correlation. Infosys and Vedanta may not have that strong correlation, but Nifty, Bank Nifty will have good amount of correlation. Yes. So at least one of the sides will give us money if let's say we are selling options. How do we make money? Again, from that buying and selling options. And sir, we do weekly expiry, so Thursday ko hota hai. Very funnily, everything else being same, how the portfolio will look on a Monday will be very different from a Wednesday evening. So Monday ko buy options will be slightly more. On a Wednesday evening, we can't have too much of buy options because Thursday is a Last day. So is the portfolio completely risk-free? No. Very low risk. Arbitrage is zero risk, but returns भी zero मिलेंगे आपको. हमारा risk is comparable to debt. Why I say so? There is only one risk which we carry. That is that gap up or gap down risk. Yes. Gap up, gap down. मान लीजिए 2-3% तक 200 पॉइंट ज्यादा खुल गया, 200 पॉइंट नीचे खुल गया. मैनेजेबल है. 200 पॉइंट. निफ्टी अगर 500 खुल गया, 600-700 खुला तो हम लोग शायद थर्सडे को लॉस करेंगे. अगर 1000 खुला तब तो शायद आधा % एक ही दिन में गिर जाए. That is the only risk which we carry. That risk is open even in debt portfolio. क्योंकि मान लीजिए निफ्टी अगर 1000 पॉइंट ऊपर या नीचे हो रहा है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट भी करेक्ट, especially on the way down. एक्स्ट्रा इंटरनेशनली कुछ हो गया है, वार हो गया, ये हो गया. सर वॉर तो फिर भी मैनेजेबल है. एक ही रिस्क हम लोग कैरी कर रहे हैं. वॉर सुनामी सर मैनेजेबल है. वॉर मतलब किसने न्यूक्लियर बॉम्ब भी फोड़ दिया, वो एक रिस्क हम लोग कैरी कर रहे हैं. दूसरा है at this point of time India is getting some premium because of political stability. We had a proper accident in which we lost chief of army staff. पर हमारे political leadership को वैसा कुछ हो गया, God forbid. Then it's good risk. क्या होगा? That is a risk which we are carrying. But वो risk क्या इलेक्शन में मोदी जी नहीं आए तब भी बेटर है. इलेक्शन प्रॉब्लम नहीं है. इलेक्शन प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इलेक्शन नो इवेंट है. पूरी दुनिया को पता है कि 5 तारीख को गुजरात में इलेक्शन हुआ था. पोजीशन वैसे ही रखिएगा, पोजीशन वैसे ही. इलेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, नोन इवेंट्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अननोन इवेंट है. और सर अननोन इवेंट्स टिपिकली मार्केट को ऊपर नहीं ले जाते हैं. अननोन इवेंट्स गिराता ही है. तो अच्छा अननोन इवेंट एक्सीडेंट है. एक्चुअली एक्सीडेंट में तो डैमेज ही होता है. कभी-कभी अच्छा एक्सीडेंट होता है, कॉर्पोरेट टैक्स कट कर दिया. आपको एग्जांपल दे रहा हूं. वो तो बजट में करेगा तो आपको पता ही है. नहीं, जैसे सीतारामन जी बीच में करा था ना, कभी उन्होंने सितंबर 2019 में मिडिल ऑफ द डे कर दिया था ना. वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो गया, लेकिन वैसा कुछ होता है ना, वो ज्यादा इजीली हैंडलेबल होता है क्योंकि व्हेन समथिंग गुड हैपेंस ना एवरीवन वेट्स एंड वॉचेस. जैसे 9/11 टाइप का अटैक होता है, वो भी कुछ फर्क पड़ता है नहीं. बस मोदी जी को कुछ ना हो, अमित शाह को भी कुछ हो गया तो भी मैनेजेबल है.
क्योंकि अगर मोदी जी को कुछ हुआ ना, मार्केट सीधा पैसा घुसेगा, पता नहीं कितना घुसेगा। तो गुड थिंग इज आपके इंटरेस्ट रेट भी फट जाएगा उससे। पर अगर आपने ड्यूरेशन खेला हुआ है, अगर आपने 10 साल का पेपर पकड़ा हुआ है, 10 साल क्या होगा ना, आई थिंक अभी हमारे इंस्टीट्यूशन भी इतने स्ट्रांग हैं, हाँ ये भी ना बैकअप प्लान्स होंगे, LIC आके खड़ा हो जाएगा, कुछ तो प्लान, आई एम श्योर कि कुछ तो होगा। बट सुबह अगर आप 9:15 को आके देख रहे हो कि मार्केट 10% डाउन है, देन वी विल हैव टू डू समथिंग। ऐसा नहीं कि वी कैन जस्ट लीव इट टू LIC। तो अगर 10% घुसा मार्केट, हम लोग करीब 4-5% फंड में डाउन इंस्टेंटेनियसली, विच वी थिंक इज ओके, क्योंकि उस दिन आपका डेट भी आपको डिस्प्रोपोर्शनेट पेन देगा। हमारे केस में वी थिंक वी शुड बी एबल टू रिकवर वेरी फास्ट, शायद 3-4 दिन में वो रिकवर कर ले 4% 5% का लॉस, क्योंकि ऐसे इवेंट के बाद ना ऑप्शन प्रीमियम्स हाँ बहुत बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए 18,000 से 16,000 आ गया मार्केट, फर्स्ट थिंग नहीं, 16,000 कॉल का दाम 2,000 होगा अप्रोक्सीमेट, आपको बता रहा हूँ। 16,000 पुट का दाम भी 2,000 करीब होगा। We will do nothing, we will just start selling, let's say 16,000 का आ गया, 16,000 कॉल एंड पुट को 4,000 रुपया मिल गया आपको, 4,000 रुपया किधर जाओ, बोले 14,000 जाओ या 18,000 जाओ, उनको 2,000 बचेगा। So, उसके बाद निफ्टी को 15% मूव करना पड़ेगा, मोर देन 15% ईदर साइड। आप भी काट सकते हैं अगर कुछ ज्यादा वैसा माहौल बना है। सो ये बैकअप प्लान है, मुझे लगता नहीं बैकअप प्लान नौबत आएगी, बट अदर देन दैट सोच के रखना पड़ता है, आखिर फंड चला रहे हैं। अदर देन दैट मार्केट गोइंग अप गोइंग डाउन, लीमन होता है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन होता है, इलेक्शन में मोदी हार जाते हैं। So we should be able to give you consistent returns. So right now what we are saying is 6% पकड़ के चलो पोस्ट की पोस्ट टैक्स, नंबर उससे बेटर ही होना चाहिए, जिससे आप फिक्स्ड इनकम से इक्वेट करो, और नेगेटिव मंथ्स आपको नहीं मिलेंगे इज अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट, बट द चांस ऑफ नेगेटिव मंथ्स इज वेरी। लेकिन 1 साल का रुपया है तो आप बोलते हैं एवरेज हो जाएगा, 1 महीना को रिटर्न नेगेटिव होता क्या प्रॉब्लम नहीं? सर हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, 9 महीने मिलता है, 3 महीने में वो देता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न रहता है। क्यों मैं कब हाँ देखो, एक महीना 25 बेसिस पॉइंट डाउन भी हो सकता है, वैसा वाला बात है ना। वैसे हम लोग को टारगेट नहीं करते क्योंकि ट्रेजरी मनी भी है, उनको ना वो नेगेटिव पैसा देख के थोड़ा सा डाउन साइड कंपेयर टू अदर फंड इनका बहुत रेयर ही रहा है। से 3 महीना पहले सर काफी पैनिक था, जितना भी पैसा डल रहा है इन्वेस्टर में सबका पैनिक आ रहा था, इट्स नॉट परफॉर्मिंग। इशू को सर को बताया भी, मतलब प्रिंसिपल में कोई डालने में अपने डेट की तरह ही समझे, तो ट्रिपल ए की तरह इसमें 1 साल में मैक्सिमम ब्रश टू ब्रश मोदी भी गया तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मिल जाएगा, ये है ना, रिटर्न नहीं मिलेगा। गारंटी रिटर्न भी मिलेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं मान लो अपने ब्रश ही बोल दिए, फर्स्ट केस में भी रिटर्न मिलेगा तब ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्शन। 1 साल का ओरिजिन मिनिमम साइड में होना चाहिए, और एक रिस्क बस वही है कि अगर आप देखें ग्लोबल तो नीचे जा रहा है ना, अगर मान लो वहां कुछ हो गया, वहां भी मार्केट 5-6% डाउन हो गया, हम लोग उतना बुरा रिएक्ट नहीं तो आप करेंगे। क्या स्टडी करते हैं, मान लो आपका रिसर्च, आपका एक्सपर्टीज, इसमें क्या होता है वो, ये लोग जाके क्या होगा कि किसी क्लाइंट को समझाए, अपने एक बार एकदम ले की तरह बात करेंगे, आज ही कोई NIBM से ज्वाइन किया है, वो किसी क्लाइंट को समझाए, तो क्या समझाए सर इसमें डालना चाहिए कि इसमें ये लोग क्या करते हैं, यही तो बात है। तुम तो नया लड़का, तुम क्वेश्चन का नहीं पूछता है, ये 3 दिन पुराना है। तो सर हम लोग 2 चीज करते हैं, एक तो कॉल बाय और सेल करते हैं ना, अच्छा, कॉल और पुट भी बाय सेल करते हैं, तो हम लोग रिलेटिव मिस प्राइसिंग देखते हैं। रिलेटिव मिस प्राइसिंग क्या हुआ, अब मान लीजिए 18,700 पे निफ्टी, मान लीजिए 18,900 कॉल है 105 रुपया, बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 18,900 कॉल है 105 रुपया, और मान लीजिए 19,000 कॉल है 106 रुपया। ओके, तो फिर हम लोग पक्का 18,900 का लेंगे, 19,000 का बेचे। यस, सो 1 रुपये का लिए, लेकिन 100 रुपया आपके घर में आ गया। करेक्ट, और वो होल्ड तो नहीं करेंगे ना, वो निकाल देंगे प्याज से। हाँ, जब भी थोड़ा सा मौका मिल जाएगा, लोग तो मिस प्राइसिंग देखते ही 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाएगा। इसको आप आर्बिट्राज बोल नहीं सकते हो, ये हमारे फ्रेमवर्क में थोड़ा मिस प्राइसिंग है। हाँ, मिस प्राइसिंग है, यस यू आर राइट। दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज वन सोर्स ऑफ रिटर्न्स। सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना थोड़ा सा डायरेक्शनल पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे 5% नेट लॉन्ग हो गया, 4% नेट शॉर्ट हो गया, कुछ ऐसा करते हैं हम लोग।
हम लोग मतलब फिगर आपके पास सब रहते हैं, कॉल में किसमें कितनी कॉल है, कितने पुट है? वो तो रहेगा सर। जैसे मान लो अभी बैंक ठीक लग रहा है मान लीजिए लोगों को, तो अब बैंक का कुछ खरीद लिए और दूसरा किसी को बेच दे, ऐसे भी करते हैं। बैंक निफ्टी पुट बेच दिया, निफ्टी पुट करते खाली बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में ही दोनों करते हैं और किसी में नहीं करते। इसीलिए हाँ, प्रोटेक्टेड वही बोल रहा हूँ। तो बैंक का बेच दिए या मान लो बैंक बैंक का पुट बेच दिया, निफ्टी का पुट। बैंक पुलिस और आईटी में मान लीजिए कमजोरी लग रहा है, तो बैंक की खरीद ली कॉल और आईटी की पुट बेच दी, ऐसे करते हैं। लोग उल्टा करते हैं, बैंक का पुट बेच देंगे और हाँ, निफ्टी बैंक का पुट बेच देंगे, वही। हाँ, बैंक का पुट बेच के बैंक का पुट पास वाला पुट बेच देंगे, उसको भी नेकेड नहीं छोड़ेंगे, पास वाला पुट बेच के। और फालतू दूर का मान लीजिए अभी 43,200 है, तो 43 का पुट बेच दिया और 42 का पुट खरीद लिया, ऐसा कुछ कर दिया। और निफ्टी में मान लीजिए 18,700 है, तो 18,500 का पुट खरीद लिया। और फिर दूर का पुट बेचने का फायदा नहीं है, क्योंकि 18,000 में कुछ मिलेगा नहीं आपको बैंक निफ्टी में। हाँ, कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे, बहुत कुछ 10 रुपया मिल गया, 25 रुपया मिल गया, क्या नहीं जाने। एक तो ये करता हूँ, दूसरा सर हम लोग शेप ऑफ द कर्व खेल रहे हैं। शेप ऑफ द कर्व क्या हो गया, मान लीजिए ऑप्शन का प्राइस है 100 रुपया, और मान लीजिए 5 दिन है, अब 2 दिन बाद मान लीजिए मार्केट ने कुछ नहीं करा ना, सबको लगता है 100 हो जाएगा 60, ठीक है, हो जाएगा। 60 हो जाएगा। 60 होता नहीं है, 100 ना 80 रहता है। अच्छा, तो ना ऐसे ऐसे 20 रुपया आप खा सकते हैं घर में। वो ना ऐसे डीके नहीं करता, वो ना ऐसे डीके करता है। हाँ हाँ, जो डीके होता है ना लास्ट में, लास्ट वाला दिन 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है। हाँ, शुरू में ना बाई करके आप थोड़ा सा वेट करिए। यस, पर वेडनेसडे इवनिंग को आप वो नहीं कर सकते, कि वेडनेसडे से थर्सडे ना बहुत सबसे शार्प फॉल करता है, ट्यूसडे से वेडनेसडे थोड़ा फॉल करता है। सो वो सब भी हम लोग करते हैं। इसके मैंने आपको बोला पोर्टफोलियो थोड़ा कम डिफरेंस रहता है थर्सडे को। हमारे पुतिन साहब ने यूक्रेन इन्वेट करा था ऑन वेडनेसडे इवनिंग। अब मेरे को डेट बोल रहा हूँ, कभी फरवरी था। फरवरी का एंड था। हाँ, तो वेडनेसडे इवनिंग को उन्होंने इन्वेट किया, तो हमारे मार्केट में रिएक्शन आया थर्सडे। थर्सडे आप देखेंगे मार्केट 5% डाउन, 40 बिप्स डाउन, मैनेजेबल है। वो भी हम लोग 10-15 बिप्स डाउन थे, लास्ट में अचानक से 3 से 3:30 के बीच में कोलैप्स कर गया। तो वैसे पोर्टफोलियो का डिफरेंस थोड़ा थर्सडे को कम रहता है। हम लोग वो शेप ऑफ द कर्व और थोड़ा डायरेक्शनल पोजीशन है, थोड़ा सा ऑन द मार्केट। हमारा CAGR इज अराउंड 14% हिस्टोरिकली, अगर आप देखो प्री पोस्ट फी, तो प्री फी CAGR होगा अराउंड 16%। 16% से ना सर अराउंड 4% ओवरनाइट ट्रेड्स। तो ब्रेकअप दे दे रहा हूँ कैसा आएगा, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव्स करते हैं, हम लोग लेवरेज 200 से ज्यादा ले नहीं सकते। तो अगर आपने मुझे 100 रुपया दिया है, मैं 200 से ज्यादा सेल कर ही नहीं सकता। ये फिर वो सेफ है, क्योंकि आप सेबी से वो कंप्लाइंट है कि बस ठीक है 50% आप डबल खेल सकते हैं। तो उतना लेने के लिए ना आपको ज्यादा कैश वैश चाहिए नहीं होता। तो उन लोग का अराउंड 75% 80% पैसा ना ओवरनाइट रेट में पड़ा है। अच्छा, लिक्विड में? लिक्विड में नहीं, CBL हो सकते हो हाँ, आप, CBL और GSEC लेस देन 90 डेज। GSEC लेस देन 90 डेज, क्योंकि अगर उसको यूज करोगे ना तो मार्जिन ज्यादा मिल जाएगा। यस, तो जो 16% हमने हिस्टोरिकली दिया है, which after fees a 14% number, 16% में around 4% would come from this CBLO। उसके बाद करीब 9% आएगा आपका एग्जैक्ट जो मार्केट न्यूट्रल है, सेलिंग एंड बाय, और बाकी 3% जो आपका थोड़ा डायरेक्शनल पोजीशन लेते हैं उससे आता है। सो ये हमारा ब्रॉड ब्रेकअप है। डायरेक्शन प्रॉब्लम कभी लेस भी हो सकता डायरेक्शन में कैसे करते हैं ना हम लोग, थोड़ा यू वांट टू कॉल इट मोमेंटम, या जो लोग देखते हैं मोमेंटम ही बोलते हैं उसको, देखते हुए मार्केट्स आर स्ट्रांग और नॉट। मार्केट स्ट्रांग का डेफिनेशन है निफ्टी गोइंग अप एंड बैंक निफ्टी मिड कैप्स डूइंग बेटर देन निफ्टी, और उल्टा अगर निफ्टी नीचे जा रहा है और बैंक निफ्टी मिड कैप्स आर डूइंग वर्स देन निफ्टी, तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट वीक है। इसके साथ हम लोग देखते हैं रुपी स्टेबल है या इंटरेस्ट रेट स्टेबल है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, डूइंग बेटर देन निफ्टी, टुगेदर विद दैट किसी इंटरेस्ट रेट्स आर स्टेबल, रुपी स्टेबल, देन वी गिव अ स्लाइट लॉन्ग टिल्ट टू द पोर्टफोलियो। उल्टा देख रहे हैं, वी गिव अ स्लाइट शॉर्ट टिल्ट टू द पोर्टफोलियो। सो टिपिकली वी डोंट मिस ट्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं फिर भी मार्केट रैली कर रहे होता है, उस समय हम लोग कोई डायरेक्शनल पोजीशन नहीं लेते। रिवर्स तो कम ही होता है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाए और मार्केट नीचे, बट कभी कभी क्या होता है ना, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे होते हैं, मार्केट आल्सो कीप्स रैलिंग, वी डोंट फाइट मार्केट, इफ समथिंग लाइक दैट हैपन, डायरेक्शन को जीरो कर देते हैं, बस बेच के और खरीद के वी ट्राई एंड आंसर दी में। करेंट में आप डायरेक्शन
डायरेक्शनल जैसे आरबीआई पॉलिसी कल है तभी आपको आरबीआई पॉलिसी से उतना फर्क नहीं पड़ता। मेन वही इलेक्शंस है ना, एग्जिट पोल के चलते थोड़ा सा लॉन्गेस्ट बायस था, क्योंकि मेरा भी है कि गुजरात में अगर 135 140 आ गया तो शायद तेजी ना हो जाए। लास्ट टाइम 99 था बीजेपी का, इट वाज टू पार्टी कॉन्टेस्ट, 3 and 4 थ्री पार्टी कॉन्टेस्ट है, और आप बोलते हैं 15% वोट तो ले ही लेगा। 15% अगर थर्ड पार्टी ले गया, it's a big number, so I'm expecting 135 plus। एग्जिट पोल भी वही बोला, तो इसलिए कल थोड़ा सा लॉन्गिश रखा था, आज पैसा बनने लगे क्या। दिल्ली वाला जो हार रहा है यार, दिल्ली तो म्युनिसिपैलिटी है, ऐसे तो कितना म्युनिसिपैलिटी इंडिया में 600 म्युनिसिपैलिटी। हिमाचल शायद हार जाए, हिमाचल, बट चक्कर ये है कि अगर द एडवांटेज बीजेपी हैज इज ऑपोजिशन को उसको ममता बनर्जी तक जीतना पड़ेगा। अलग-अलग हाँ, ममता और आप टाइप जीतना पड़ेगा, छोटा मोटा मार्जिन रहेगा तो इधर कर देगा। मध्य प्रदेश मार्जिन उतना ही लग रहा है कि वो नेक टू नेक मार्जिन 2 सीट इसके ज्यादा है, 2 कम है, तो इसके बाकी जीत जाएंगे ना बीजेपी के, वो लोग आ जाएंगे, वो लोग तोड़ देंगे पार्टी को। सो आपको जीतना पड़ेगा, तो आप टाइप जीतना पड़ेगा या ममता बनर्जी टाइप। सो आई थिंक इसलिए मैं रुपया आप देखे थोड़ा प्रेशर में, सो रुपये से सिग्नल थोड़ा शॉर्ट आ रहा है, मार्केट्स थोड़ा इंडिसाइसिव सिग्नल आ रहा है। सो अगर इलेक्शन नहीं होता पॉसिबली मैं 2 या 3% शॉर्ट रहता, बट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस 2-3% नेट लॉन्ग है पोर्टफोलियो। तो हाईएस्ट नेट लॉन्ग या नेट शॉर्ट कितना परसेंट है? 10%। लास्ट ईयर वही चला है, इस साल अगर ये मंथ भी थोड़ा ठीक आ गया तो थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाए। बट स्ट्रेटेजिकली मतलब फंड का कोई डिफाइन है कि मैं इससे ऊपर लॉन्ग नेट या नेट शॉर्ट भी जाऊंगा? अभी तक हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन चेज कर रहे थे, वी वर चेजिंग रिस्क इन द पोर्टफोलियो। द रीजन इज लास्ट ईयर डेट gave nothing, equity also was behind us only, equity arbitrage भी पीछे ही है, so that's why we consciously took down risk in the portfolio। so last year हम लोग -10 से +10 के रेंज में ही रहे। this year we think interest rates are going up, I personally think they may have peaked out, I personally think they may have peaked out, but what I think doesn't matter, investor thinks is more important। इसे लग सकती है कि डेट शायद मुझे और better returns दे, either is 6 or 6.5 good enough। so if we have one more decent month, then possibly next month onwards थोड़ा सा हम लोग और portfolio 15% कर लेंगे, कुछ फिर 9 महीने का जमा भी हो जाता है ना, विल पावर बन जाता है। रिस्क लेने के इधर क्या मैं बताऊं आपको क्या, क्योंकि ये मार्केट को शो करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम लोग 5,000 करोड़ डाइजेस्ट कर सकते हैं। Sending that message to the market also is important, that we can manage 4,500 crores of money without any disturbance to the risk return pattern। अगर रिटर्न थोड़े कम हुए, रिस्क साफ दिख रहा है कि आपको कम हो गया, तो आप परफॉर्मेंस नंबर्स में ना स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर्स देखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ रिस्क। पहले लास्ट ईयर हमने 3.5 चलाया, फिलहाल 2% है, रिस्क को हमने 50 से भी हाफ कर दिया। सो जो रिसर्च आप पूछ चुके हैं, वी ट्राई टू मैच रिटर्न्स एंड रिस्क, because risk is the more easily controllable part। then what we can do is we can just turn on the risk and hope that returns will definitely go up, but forecasting returns तो आपका हाथ में कभी भी है, वन फाइन मॉर्निंग ठीक है, या सुधा साइड का कार्ड बन सकती है, but मेरा व्यू है कि पैसा बन सकता है mainly because of multiple reasons। मतलब 2023 में आपको क्या लग रहा है लॉन्ग शॉर्ट में, मतलब इतना आ जाना चाहिए? मार्च तक 2023 पूरा पूछ लेना, कितनी लगाए मार्च तक ना, 2024 मार्च नहीं 23 लगाएगा तो साल भर का बात करते हैं, साल का क्या बैठेगा? तो मार्च तक तो 6 तो क्रॉस हो ही गया। अच्छा 6 पोस्ट फी तो क्रॉस, पोस्ट फी पोस्ट टैक्स तो क्रॉस हो ही ये गया वाला फिक्स क्रॉस करेगा, 560 था लास्ट मंथ तक, पर इस मंथ का 190 आया है, 6.4 के आसपास लाइन बोल रहा था होगा। नहीं कोचर में समझा नहीं, 16-14 पोस्ट रिटर्न था, 6 को आया, क्या बात है? ये तो 4-5 साल का बता रहा है, लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं था, उससे पहले ज्यादा था, मेरे साथ 20-18 वैसे आया था। ये सर इस मंथ में 2017 हो गया, 6 हो गया, हुआ नहीं होगा सर, ये 5.6 था रिटर्न अप टू नवंबर, सॉरी पहले मंथ में, उसके बाद नवंबर मंथ में आपका 1.9 आया है, राइट? इसमें टैक्स देके आप सपोज करिए 80 पैसा बचेगा भैया, 1% पकड़ 60 पैसा आप निकाल दीजिए आप एवरेज,
40 पैसा 12 महीना में डिवाइड करेंगे 3-4 पैसे नहीं बन जाएगा, श्योर श्योर 6 क्रॉस कर गया, अब देख लीजिए 6 क्रॉस कर गया। श्याम वाला बोल रहा था कि 6 क्रॉस कर गया, 6.4 है। हो सकता है वो मंथ का फर्क है, मेरे जो वो कभी डाला होगा, जनवरी डाला होगा, कोई मार्च अप्रैल में डाला होगा, उससे भी फर्क पड़ेगा। नवंबर में 1 साल हुआ है कंप्लीट, दिसंबर में मतलब 1 साल 1 महीना हुआ होगा। The worst investor is 5.8. Yeah, 5.8 The worst investor, I think. तो जनवरी फरवरी का मंथ था ना, वो बहुत, एक महीना तो नेगेटिव था और एक महीना जीरो। नेगेटिव बहुत छोटा सा ही था, बट मान लीजिए दोनों महीना जीरो ही था। और बहुत सारे मंथ 30-40 वाले थे। बहुत सारे मंथ, और दिसंबर में जिसका रुपया लगा ना, उसको 3 महीना तो पे नहीं दिखा। जो अभी 3 महीना पहले लगाया होगा उसको भी बहुत अच्छा लगा। इसका तो 8 या 9 आ रहा होगा। वैसे एक चीज बताइए ना, हम लोग जब लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे कॉल, तब आपका था कि 8% पोस्ट टैक्स आना चाहिए, अभी आप चेंज हो के 6% 6 से 7 आ गए। तो क्या कोई मार्केट ड्राइवन कोई चेंज हुआ फंड का फीडबैक हमें आया मार्केट से इज इक्विटी आर्बिट्रेज इज गिविंग गुड रिटर्न्स, उस समय डेट रिटर्न्स भी कम थे। बट इक्विटी आर्बिट्रेज सर अभी 5.5 पौने 6 रहे हैं। वो तो ग्रॉस बोलो ना, नहीं डायरेक्ट प्लान बोलूं तो नेट बोल रहा हूँ। 30 के बाद बोलो क्या? हाँ, सो वी विल आल्सो इंक्रीज द रिस्क इन द पोर्टफोलियो। तभी मैंने आपको बोला ये बंदी अगर ठीक हो जाए, वी विल बी फोर्स्ड टू इंक्रीज रिस्क इन द पोर्टफोलियो, क्योंकि वी आर कंपीटिंग विद सब हमारे लॉन्ग शॉट कैटेगरी में, तो वी आर डूइंग बेटर देन ऑल पीयर्स। टाटा जो आप बोल रहे थे, टाटा का लॉन्ग शॉट इज वे बिहाइंड अस, उनका दूसरा फंड है इक्विटी फाइनेंस वाला। So we will have no option but to increase risk in the portfolio. So just waiting for one more month. ये month भी अगर मान लीजिए 1.5 आ गया तो 7 के आसपास पहुंच जाएगा for financial year 22. So then we will increase risk in the portfolio थोड़ा सा। इसलिए करा हम लोगों ने रिस्क कम, क्योंकि we wanted to show कि हम लोग 4500 चला सकते हैं। We thought कि अगर मान लो 8 से 6 भी आ गया, we can still come and face you confidently, क्योंकि बाकी एसेट क्लासेस में आपको पैसे नहीं दिए होंगे। वो कॉल हमने लिया, बाकी एसेट क्लासेस पैसा दे नहीं रहे, हम पहले इतना तो दिखा दें कि 6 दे सकते हैं, बिकॉज अगर 6 दिखा सकते हैं कि नो नेगेटिव मंथ्स है, तो आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा रिस्क बढ़ा के रिटर्न्स आ जाएंगे। दैट इज अ मोर बिलीवेबल स्टोरी। मार्केट विल नॉट पेनलाइज यू फॉर दैट। इसमें लेकिन भाव भगवान है, आप उस पे चलते हैं, भाव और रेट, इसमें कोई रिसर्च नहीं कोई रिसर्च नहीं है, भाव भगवान है। और उसमें फंसने का चांस सर इसलिए कम है क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि 100% लॉन्ग चले थे, 100% शॉर्ट चले गए। भाव भगवान है, कैन कैच यू ऑन द रॉन्ग फुट, गो ऑल इन, और लेट्स से यू टेक पोजीशन। ये मतलब आपको कहाँ पे स्प्रेड मिल रहा है, वो कभी भी यार 15 मिनट में चेंज हो सकता है, सीधा बात है। आधा घंटा मान लीजिए आप जो बोले ना कि 18,900 का इतना है और 19,000 का इतना है, तो ये एक का एक चेंज हुआ, आप उसमें अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं, वही बात। इतना लिक्विडिटी होना चाहिए कि आप अपना डिसीजन चेंज कर पाए। हाँ, ऐसा नहीं हो कि आप करके बैठ गए और फिर थर्सडे तक वेट करें कि कब एक्सपायरी होगा। वो तो दोनों साथ मिलेगा तभी करेगा आप, उसमें क्या बात। जो दूसरा फंड सर अपने लॉन्च किया है जो 3 महीना हुआ है, उसमें सर क्या है ना, क्या चेंज है कंपैरेटिवली? इसमें आई वांटेड टू रन द फंड लाइक टाटा, इससे रिटर्न्स तो बेटर आ जाएंगे, बट टाटा ने अच्छा एक्सपीरियंस दिया इन दिस लॉन्ग प्लस थिंग। अवेंडस और ईडलवाइस की एक्सपीरियंस हैज बीन हॉरिबल। आपने बेचा हुआ अवेंडस और ईडलवाइस का? अवेंडस का एक एनहांस्ड है और ईडलवाइस का भी एनहांस्ड है, उसका इन्वेस्टर फीडबैक इज हॉरिबल। सो वी एज अ हाउस टुक अ डिसीजन कि आप उसे छोड़ दो, हमारा एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, कैन यू बीट बैक बाय 4% ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस एवरी ईयर? So I said yes. So the objective of this fund is to beat back by around 4% per annum every year. Balance advantage. Gross. Post fee pre-tax. इसमें टैक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 70% स्टॉक्स में रहेंगे, और वो स्टॉक्स हम लोग चर्न नहीं करेंगे, और उस 70 का 60 पकड़ लो निफ्टी रेप्लिकेशन है, और बाकी 10 जो हमारा स्टैंडर्ड एनटीपीसी है, जो हम लोग के फेवरेट नाम से उससे बाकी 10% होगा। सो दैट 10% वोंट मीनिंगफुली मूव द नीडल। मतलब अगर निफ्टी जा रहा है एक तरफ तो उसके साथ ही वो 70% मूव करेगा। दैट पार्ट विल हैव इक्विटी टैक्सेशन। द रिमेनिंग पार्ट जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग का डेट, उसमें हम लोग का 42% टैक्स रहेगा। सो ब्रॉडली जो हमारा एस्टिमेट है, इफ वी आर मेकिंग समवेयर अराउंड 4%
पोस्ट फी प्री टैक्स ओवर बैक, पोस्ट टैक्स शायद आपका 1.5% आएगा। इसमें 70% आप स्टॉक खरीदोगे, 100 रुपए है तो 70 रुपए का आप स्टॉक्स खरीदोगे, राइट? पीछे दार्जिलिंग निफ्टी का स्टॉक रहेंगे वो, और 30% जो रहेगा उसमें आप ऑप्शंस ही करोगे, जैसे आपका 20% आप ओवरनाइट रेट पे रख दोगे और फिर उसे ऑप्शंस करेंगे बाकी से। निफ्टी और बैंक निफ्टी का, या स्टॉक के अगेंस्ट? इसमें स्टॉक्स के अगेंस्ट थोड़ा ज्यादा करेंगे। उसी स्टॉक का कॉल भेज दिया, उसी उसी का का call कॉल भेज भेज दिया, दिया, correct. उसी में करेंगे। तो नेट आपका लॉन्ग ऑलवेज मतलब 40-50% के साइड में रहेगा या जी। कैसे रहेगा? ये विजिबल है आपको, ये वाला, ये विजिबल दिख रहा है आपको? ये चार्ट विजिबल है आपको? सो ये ना मार्केट टिपिकली ये 3 जोन्स पे रहता है। सो वी हैव आवर ओन वैल्यूएशन मॉडल जो टाइम टेस्टेड है। सो नॉर्मली वी आर एबल टू find bottoms and let's say the red overbought zones pretty well. So our research suggests that markets typically are not in this green zone for long, especially Indian markets. So whenever there is a sudden crash, you will have some buyer. मुझे तो लगता है कि शायद ये ग्रीन जोन आए भी ना अभी अगले 4-5 साल तक, है ना? That also is a probable scenario. अभी रेड जोन भी नहीं है। अभी रेड जोन भी नहीं है। तो ये ग्रीन जोन में हम लोग क्या करेंगे ना, what our balanced advantage fund would do is it also plays in a 30 to 80 net equity kind of a range. वो 70 equity चलाएगा इस ग्रीन वाले जोन में। What we will do is जो हमारा 70 रहेगा that will remain. On top of this we will start buying calls in this green zone. ग्रीन जोन में मार्केट में लोग उस समय लेवर करके we will go to 120-130 by buying calls. लोग पूछते हैं कि ग्रीन जोन में आके अगर मार्केट उधर ही रुक गया तो क्या करोगे, क्योंकि आपका कॉल प्रीमियम तो चला जाएगा ना। उसमें हम लोग वो शेप ऑफ द कर्व खेलेंगे कि मान लो 5 दिन का आपने खरीद लिया या लेट्स से मंथली खरीद लिया आपने, द डीके वोंट बी दैट मच इन द फर्स्ट 15 डेज, फर्स्ट 10 डेज, उसके बाद हिल नहीं रहा तो वी विल बी फोर्स्ड टू कट पोजीशंस। बट दिस इज हाउ वी विल प्ले दिस ग्रीन। इस ग्रीन जोन में डिस्प्रोपोर्शनेट अल्फा ओवर बैक बन जाएगा बिकॉज़ बैक विल बी 70% and we will be 100-120% long. So अगर ये green zone आया तो वो 4-5% alpha of the back will be made in a single month only. The problem is the green zone may not come in the next 5 years. That is a bigger challenge. This amber yellow zone is where most of the action should be. So markets are neither cheap nor expensive. Right now शायद more towards red and amber. इस yellow zone में हम लोग क्या करेंगे ना, the 70 that we have in stocks that remains, उसके सामने blindly we will sell 70 worth of calls. 70 का खोल भेजेंगे, 340 में आईटीसी खरीदा, 350 का आईटीसी का 8 रुपया खा लिए, बस सीधा बात है। ये येलो 10 रुपया मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आज अपने जो करते हैं वो वाला ही बात है, इसमें सिंपल बात है जो हम समझाते हैं। येलो वाले जोन में वो करेंगे। इसमें भी अल्फा ओवर बैक बन जाएगा क्योंकि बैक 15% कॉल ही बेच सकता है। By definition of a mutual fund, we can't sell calls more than 15% of the portfolio. That to covered call. इसमें वो restriction नहीं है, इसमें आप 70 भी बेच सकते हो, ज्यादा भी बेच सकते हो, बट हम लोग 70 ही बेच। इसमें भी अल्फा बन जाएगा। अल्फा रेड जोन में बनाना थोड़ा मुश्किल है, रेड जोन में बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बैफ बोलेगा 30% नेट लॉन्ग चलाएगा पोर्टफोलियो, उस समय शायद हम लोग 20% नेट लॉन्ग चलाए, तो उस समय मान लीजिए अगर मार्केट और रैली करा, पोर्टफोलियो शायद बैफ से अंडर परफॉर्म करे, फिर भी वी थिंक वी विल बी एबल टू मेक सम मनी आउट ऑफ बैफ क्योंकि बैफ डजंट बाय टू मच ऑफ पुट्स। इसमें हम लोग फिर वो शेप ऑफ द कर्व थोड़ा सा खेलेंगे, वेदर वी आर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ या सेकंड हाफ ऑफ द मंथ, तो यहाँ भी थोड़ा पैसा अल्फा ओवर बैफ बन जाएगा। बट द मेन सोर्स ऑफ returns over back will be in this yellow zone, and disproportionate returns over back will be made in the green zone. But the probability of that happening is low. Current context. इसमें जो ये डिफाइन किया है ग्रीन येलो रेड, ये कैसे डिसाइड? पीवी मूविंग एवरेज ये सब दिया हुआ, क्या दिया ये हुआ? सिंपल वैल्यूएशन इंडेक्स है और वो वर्क किया हुआ जो हम लोग का बैक है ना, वी हैव यूज्ड सी इनपुट ओवर हियर। बट आई थिंक इंडिया एक फेज पे आ गया जहां ये ग्रीन जोन का होना थोड़ा मुश्किल है। नेट टैक्सेशन नेट क्या पड़ता है सर दोनों का ब्लेंडेड? सर ब्लेंडेड करीब 24-25 ऐसा है। 425 पड़ता है और ग्रॉस में आप रिटर्न बोले 13-14 11 + 4
इसमें सर क्या होगा ना, एनहांस फंड वाला जो सबका 25% ही टैक्स बेसिकली वही है, टाटा का भी वही है, इसमें फनी पार्ट पता है क्या है? 50% 70 इसमें फनी पार्ट ये है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा ना तो आपको टैक्सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेरिवेटिव्स में आप पैसा खोगे उस समय. So, for example, since we started, market is up 5.5%. We are up some 3.5%. उसमें टैक्स इक्विटी टैक्सेशन नहीं लगेगा, क्योंकि बाकी हमने कॉल बेच के खोया ही है, पैसा बना नहीं है. और अगर मान लीजिए मार्केट 20% घुस गया, हम लोग शायद 5% ही घुसे, बट उस समय आपको -7 या -8 दिखेगा, क्योंकि ऑप्शंस में उस समय पैसा बना होगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा. सो ये थोड़ा सा फनी सिनेरियो है. मार्केट ऊपर गया तो टैक्सेशन इज इक्विटी टैक्सेशन, मार्केट नीचे गया तो उस समय डेरिवेटिव में ज्यादा पैसा बनेगा तो टैक्स नहीं है. बट नेट नेट दोनों का एवरेज शुड बी, वी शुड बी एबल टू गिव यू अराउंड 4% ओवर बैक पोस्ट टैक्स के बाद आप 1.5 होगा के. इसमें टाइम होरिजन लंबा होगा सर इसमें हमने टाइम होराइजन 1 ईयर प्लस रखा. अगर आपने 1 ईयर से पहले निकाला, हम आपको पूरा 42% टैक्स डाल देंगे आपके ऊपर. सो मान लीजिए अच्छा, इररेस्पेक्टिव ऑफ अंडरलाइंग में क्या लगा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या लगा, सीधा 42% डाल देंगे, क्योंकि जो हम लोग स्टॉक्स ले रहे हैं ना, 2 अकाउंट रहेंगे, 2 डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स रहेंगे. वी कांट चर्न द स्टॉक पोर्टफोलियो. वो चर्न करे तो कोई बोल सकता है कि आपने इसमें स्पेकुलेट करा है, ये करा है, वो करा है. सो इफ यू डोंट रियलाइज वो टैक्स लायबिलिटी शायद जो होल्ड किया हुआ है फॉर मोर देन 1 ईयर उसके ऊपर ना आ जाए बात. So if you take money out of it, first 1 year, तो पूरा 42% टैक्स on the entire. 1 साल से कम वाले का नहीं लगवाने. 10% मिलेगा उसका. एग्जिट नोट तो फिर भी अगर क्योंकि दे के निकलना चाहे तो, बट टैक्स उनको पूरा लगेगा 42%. मोर देन 1 ईयर. बट आइडियल हॉरिजन क्या है? एग्जिट नोट चाहे 1 साल का ही है, बट आइडियल हॉरिजन किस तरह का स्ट्रेटजी? जैसे पहले वाला स्ट्रेटजी थोड़ा कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी, फिर भी हम लोग 1 साल उसको बोल रहे हैं कि 1 साल रहिए. इस फंड का आइडियल इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 2 years तो होना चाहिए. 2 years होना चाहिए. इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में रिटर्न्स फोकस करना भी थोड़ा मुश्किल है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग अल्फा ओवर बैक, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ हाउ द मार्केट मूव्स है. द फर्स्ट वन डजंट डिपेंड ऑन मार्केट, लॉन्ग टर्म डजंट डिपेंड ऑन मार्केट. मार्केट घुसा ऊपर गया ऊपर, दिस विल डिपेंड ऑन हाउ. जिसका बाइंग सेलिंग आप हम लोग का इंस्टीट्यूशन डेस्क से कर सकते हैं. इसमें तो सब कुछ नहीं, हम लोग एम्पैनल हमारे यहाँ जितना एम डाला हुआ. हाँ, हम लोग सबके साथ करते हैं, पर आप एम्पैनल्ड हो शायद. हो क्या हम लोग के साथ? मैं काम पूछता हूँ. 1 पैसे का भी नहीं है. रिक्वेस्ट भी डाला इस पर डाला था. सर को बोल देना ना. आप हमारे साथ एम्पैनल्ड हो क्या? पैनल एम्पैनल्ड, हाँ तो ठीक है ना, फिर मैं आपसे बात आप करता एआईएफ और पीएमएस का अलग-अलग प्लेटफॉर्म तो चाहिए नहीं, मतलब एआईएफ और म्यूचुअल हूँ. फंड. देखो पीएमएस में तो मेरे अंडर में आता है, पीआईएफ में मैं आपसे करवाता नहीं, मैं हूँ. बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड का. और तो जो भी होगा वो देख लेंगे. अगर फिर इस मेन में हो गया तो दूसरे में किसी में भी एम्पैनल करने में कितना क्या देगा. होता है ना, पेपर वर्क अलग है, नाम का पेपर वर्क. अगर आप म्यूचुअल फंड में एम्पैनल्ड हो ऑलरेडी इम्पैनल्ड है, काम तो नहीं. 1-2 दिन नहीं, आपको नया पेपर वर्क हम लोग ही बोल देंगे क्या करना है. हाँ हाँ, वो 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगता है. 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगता है बस. और हम लोग का वॉल्यूम ह्यूज है. वो तो आपको हर समय करते रहना है ना. पैसा कम देते हैं, मतलब हाँ, वो फी कम है बट वॉल्यूम ह्यूज है. नहीं, अदरवाइज की जैसे हमारे बहुत आता है, चाइनीज करते हैं कुछ. और बताइए सर, नया क्या करें? वही लोग पूछ रहे थे कि मार्केट में क्या है. आई थिंक नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़. जब तक कोई बुरा न्यूज़ नहीं आया तो हर चीज मार्केट ऊपर ना जाए अलग बात है, पड़ा रहे. बजट में कुछ कर दिया अलग बात है, टैक्स वैक्स बढ़ा दिया. बजट में इस बार कुछ आना चाहिए फेवरेबल. सर वो सुन रहे हैं कि मास फेवरेबल आना चाहिए. कैपिटल गेन या टैक्स स्लैब में आ सकता है. इक्वलाइज कर देंगे डेट और इक्विटी को. हाँ हाँ, 2 years कर देंगे दोनों को. और टैक्स स्लैब में आ सकता है, जैसे सैलरी क्लास वालों का और वालों का कुछ ना कुछ आ सकता है. ये अच्छा टाइम है कुछ अगर टैक्स करना चाहिए. जीएसटी अच्छा कलेक्शन आ रहा है और भी आ रहा है. तो इस बार कर सकता है क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है नेक्स्ट. इलेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. आई डोंट थिंक उतने दे आर स्टिल वेरी केयरफुल. पता नहीं क्या हो सकता है. पता नहीं क्या हो सकता है, बट इनका फीडबैक काफी स्ट्रांग है. इनको लगा नहीं इलेक्शन में टाइट है, वो डाल देंगे यूपी में पैसा. इलेक्शंस आई डोंट थिंक इज अ कंसर्न. सी अल्टीमेटली मेजॉरिटी में 300 वाला है ना, 220 भी अगर ले आए तो भी पीएम यही गवर्नमेंट इन्हीं का बनेगा.
ब्रांच में किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अबे अलीसा, No question, sir. देखिए सर मिली मेरे पे ऊपर आया बैठा है। Thank you so much for coming.